Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. In this video, we will be discussing about what is the upcoming price action for Nifty 50, that is how tomorrow market can behave. Before starting that, let us discuss that what we discussed yesterday and market ने किस तरह से काम किया. The only scenario which I gave yesterday for taking a call option was अगर मार्केट इसके ऊपर चले जाता है इस प्राइस के ऊपर, राइट. मैंने आपको ये भी कहा था कि 5 मिनट के ऊपर अगर ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, जो हमने ये लेवल का इंपॉर्टेंट लेवल आइडेंटिफाई किया था, इस लेवल को क्रॉस करता है और मार्केट गैप अप खुलने के बाद क्रॉस करती है, देन वी विल लुकिंग फॉर अ कॉल ऑप्शन. मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी, लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट बुक किया. फिर कुछ लोगों ने यहाँ पे भी पर्सनली प्रॉफिट बुक किया. आई टुक एन एंट्री बट मुझे जल्दी एग्जिट लेना पड़ा, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा होता जस्ट बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल कमिटमेंट्स. तो कल तो हमने ये बात की थी कि मार्केट में आज के दिन कैसे ट्रेड करना है. ट्रेड बहुत बढ़िया रही एंड सारे सब्सक्राइबर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया. जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है उनको रेगुलर अपडेट नहीं मिल रहे होंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए. इन एडिशन टू दैट आपको स्टॉक ट्विट्स को भी फॉलो करना चाहिए, बिकॉज एट स्टॉक ट्विट्स you will get an update of the trades which I share along with the results of those trades, right? Now let us understand that what the market is exactly doing and what it can do tomorrow. What is the probable scenario? If you remember yesterday, I said you that market is trying to create, market can only create two patterns, but how to follow those two patterns is the question. So I said you the market can create a pattern like this, and in pattern, on market can create a pattern like a double bottom pattern. Today we can say that market has started its journey of a double bottom pattern, but whether we should be very much positive that the market will go up from this position or we should wait for an additional confirmation. Guys, try to understand the chart. Knowledge is everything. आपको thumbnail को देख के समझ आ गया होगा. If you want to be independent, you need to acquire knowledge. You cannot say that I am reliable, I am reliant on some YouTube channel, on some Telegram channel, whether it's I'm sorry, there was a call in between. Let me see who is it. Yeah, it's a spam call, sorry. So you cannot say that I am reliant on some YouTube channel, be it Powerhouse Ideas, be it any other YouTube channel. You need to gain knowledge. Now understand what the chart is doing. Today we created a kind of a double bottom pattern in formation, but whether it has been created, it can be a normal pullback of these three red candles which we have, 1, 2 and 3. So what is the probable scenario? If we have to continue above, the first signal should be a creation of a green candle, a second green candle tomorrow. If this only a pullback of these three red candles, then we can see a red candle tomorrow again, right? So don't just rush into the trade that a green candle has been formed, there was a support on which we had a gap up, you can see a piercing pattern, a morning star, blah 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 stuff. No, that's all look goods in book. You have to save your capital and need to follow the market very wisely. Now, not taking much of more time, let us quickly move on to the 15 minutes time frame. The closing which market had today is a very confusing closing. Why I call it a confusing closing? Market was over here, it opened gap up, gave a good run, created a high over here, right? Then it created a low over here. Okay, this is a positive thing that the market is able to maintain its low, but the market was not able to close above the previous high. So if you can relate, market created a higher low, but on the same high, stand, the market is not able to create a higher high. तो अब हमने समझना क्या है, देखो ये समझो. मार्केट यहाँ पर एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना रहा है. सेम वे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना रहा है. ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना रहा है. अब कल का ट्रेडिंग सिनारियो क्या रह सकता है? हमने तीनों सिनारियोस को, तीनों इंस्टांसेस को डिस्कस करना है. फर्स्ट इज अ गैप अप ओपनिंग. अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ऑलवेज रिमेंबर
अगर कोई भी लेवल 2 बार रिस्पेक्ट हो रहा है तो वो लेवल इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट का चार्ट है, आपको एक दिन के लिए ऑप्शंस की ट्रेड लेनी होती है। अगर 15 मिनट पे कोई लेवल 2 बार रिस्पेक्ट हो रहा है मींस दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। फॉरगेट अबाउट हिस्ट्री में क्या हुआ है, फॉरगेट अबाउट दैट। लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे विदाउट जूम आउट किए, ठीक है, आपको कोई लेवल 2 बार रिस्पेक्ट होता दिख रहा है तो इंपॉर्टेंट लेवल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है इस एरिया के ऊपर एंड इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर चलना शुरू करती है, देन हमने पुट के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है। मार्केट ने एक दिन गैप अप ओपन हुई, ऊपर सस्टेन किया, नेक्स्ट डे फिर से एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खुलकर ऊपर चलना शुरू कर रही है। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, हम फिर भी स्टॉप लॉस रखेंगे इस लेवल के नीचे। तो मार्केट अगर हमें इस लेवल के ऊपर रुक कर ऊपर चलना शुरू करती है तो हम स्टॉप लॉस बिल्कुल एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे रखेंगे, जो इस इंपॉर्टेंट लेवल और इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे रहेगा और एक हेल्दी स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट, हमने गैप अप के केस में पुट के बारे में नहीं सोचना है, वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा हमने पुट लेना है कि नहीं लेना, बट गैप अप के बारे में हमने पुट के बारे में नहीं सोचना है। अब अगर मार्केट खुलती है फ्लैट खुलने के बाद भी अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है तो इट विल बी अ ब्रेकआउट ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एंड अ ब्रेकआउट ऑफ अ इंपॉर्टेंट की लेवल। फॉरगेट अबाउट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, आई डोंट ड्रॉ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, आई जस्ट आइडेंटिफाई लेवल ऑन द स्क्रीन विच इज विजिबल टू मी। मैं जूम आउट नहीं करता हूं चार्ट को, बहुत कम जूम आउट करता हूं। एट द मैक्स आई विल टेक इट टू 1 आवर एंड सी व्हाई दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलने के बाद इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को क्रॉस करती है एंड क्रॉस करती है आपके इस येलो एरिया को जो 2 बार रिस्पेक्ट हो चुका है, तो मैं यहां पर फिर से एक कॉल की ट्रेड लेना पसंद करूंगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे चलना शुरू करती है तो क्या मैं इमीडिएटली ट्रेंड लाइन की ब्रेक के बाद ट्रेड लेना पसंद करूंगा पुट की? द आंसर इज नो। आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो लेवल्स बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंस रखते हैं वो छोटे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये जो लेवल हमें दिख रहा है ये आर्ली के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको 15 मिनट पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। 1 2 3 4 विदाउट जूम आउट किया आपको 4 बार ये लेवल रिस्पेक्ट करता दिख रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, नीचे जाती हुई ट्रेंड लाइन को, एंड इस लेवल को भी ब्रेक करती है, देन ओनली आई विल बी टेकिंग अ पुट। इस केस में एक एडेड एडवांटेज ले सकते हो, एक एडेड अपने दिमाग में सिनारियो रख सकते हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, हम मानते हैं मार्केट नीचे है और सीधा ही नीचे चलेगी, तो इस केस में मैं थोड़ा सा अपने आप को लॉट वाइज थोड़ा सा लाइट रखता हूं, बिकॉज मार्केट एकदम से नीचे चलेगी, देयर विल बी ए पुल बैक। वो यहां से होगा, आई डोंट नो, बट देर इज अ सर्टेनिटी एंड देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पुल बैक। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। मार्केट फ्लैट खुली एंड यहां पे उसने कंसोलिडेट किया, सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड किया, देन ब्रेक डाउन किया, देन मैं अपने ओरिजिनल लॉट साइज के साथ ट्रेड करना पसंद करता हूं, बिकॉज मार्केट ने एक बेस, एक टॉप क्रिएट किया है जिसके अगर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तो रिसेंटली भी मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है एज इन एडिशन टू द प्रीवियस हिस्ट्री। दिस इज द सिनेरियो ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग एंड कब हमने पुट और कब हमने कॉल लेनी है। अब अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है इस एरिया के पास और यहां पर टाइम स्पेंड करके अपने किसी भी लो का जो शुरू की रेंज बनाएगा मार्केट उसका ब्रेकडाउन करती है, तो हम पुट के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट साइकोलॉजी फॉर टुमारो। चार्ट को समझना सीखो। मैं आपको एक एडिशनल टिप बताता हूं, इसमें एडिशनल लर्निंग बताता हूं। इसमें देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स होते हैं दोज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। अभी भी हम नहीं कह सकते कि मार्केट अभी रिवर्स कर गई है। आप देखो क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मार्केट हर बार जो हाई बना रही है वो नीचे की तरफ बना रही है। नाउ यू आर इंटेलिजेंट इनफ कि हम कब बोलेंगे कि मार्केट यहां से रिवर्स करके फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे जाने को तैयार है, जब मार्केट अपने एक एटलीस्ट बड़े स्विंग को ब्रेक कर देगी। तो जब तक मार्केट इस लेवल को, जो कि लेवल है हमारा, हम देख के बताते हैं, 18,300 को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट पोजीशनली बड़े टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल के लिए तैयार है, अपने ऑल टाइम हाई के लिए तैयार है। इसलिए मैंने आपको शुरू में समझाया डेली टाइम फ्रेम पे कि इट कैन बी अ पुल बैक ऑफ द 3 रेड कैंडल्स विच आर फॉर्म्ड ओवर हियर। बिकॉज जो 3 रेड कैंडल है, पुल बैक कहां पे है? आपने कभी देखा है क्या कि बिना
एक ही साइड पे मार्केट गिरती है। देखो यहाँ पे 1 2 3 देयर वाज अ रेड ग्रीन कैंडल आफ्टर 3 रेड कैंडल्स, सेम वे देयर इज अ ग्रीन कैंडल आफ्टर रेड कैंडल। अभी इस तरह से वापस जाती है जैसे पहले गई थी, या डबल बॉटम बनाकर ऊपर चली जाती है। दिस you will get to know only by following. You're not astrologers, you're not predictors, you need not predict the market, you just follow the market. And follow करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मैं कोशिश करूंगा कि एक रेगुलर आपके साथ वीडियो शेयर करूं, सो दैट आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ आए। आज हमने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, एंड आई होप द सेम फॉर यू टुमारो ऑल्सो। I'll see you guys in the next video. Till that time, take care. Bye bye.